the experience, right? I feel like initially I also had like a very bad experience, and then I would blame the client itself. कि आपको नहीं समझ, आपको ये नहीं. But I feel like I took a step back in understanding you need to, जो आपका portfolio है, that's like your winner, right? कि portfolio is kind of what opens the door to a lot of things. Make the portfolio that you want to work on. सही है. वही काम आप दिखाएं जो आप करना चाहते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी ना दिखाएं. So I initially studied communication design from my university back in Cyprus, and after graduating, I was trying to understand what is the landscape of, like, you know, the creative scene in Pakistan itself. And I did the first thing as, like, you know, going for jobs and stuff, and I always felt like I hated my job. Ajib Collective itself, like my own fashion brand, that is something which is a niche brand, right? That is supposed to have its own वो, because at the end of the day अजीब स्टूडियो is a service based studio. आपको एक सर्विस चाहिए, हम वो ऑफर करते हैं. Today we have Areeb Tariq, and CEO of Ajib Studios. So today we have on the guest, today we have Areeb Tariq, the founder and CEO of Ajib Studios. Before I start and dive into who Areeb is, I have been, I have been really particular about creative agencies, and I have been really taking a smash about creative agencies in Pakistan and how they are often really, really generic. But Ajib Studios, shout out to Ajib Studios and DG Inc. When it comes to design and graphics, these two people and these two agencies stand out for me. Anyhow, today we have Areeb Tariq. Areeb is a founder and CEO of Ajib Studios. Ajib Studios is a design agency, and they have worked with Spotify, they have worked with pop artists, etc. And today we will dive deep into the world of pop design, etc. So before I take too long, Areeb, can you please introduce yourself? Yeah, thank you for having me, Bilal. I think I introduce myself as like a visual artist. I work in a lot of mediums that go beyond fashion, multimedia design, and graphic design, and much more. And I do run Ajib Studio with my amazing partners. I have Raza with me, I have Maham with me. RDK Maham, she's based in Lahore. She's also an amazing designer. So, and at the same time, I also do run a fashion collective, which is called Ajib Collective. So everything is kind of under the umbrella of the Ajib universe, pretty much. So yeah. So how did you start? What was that initial point when you thought that graphic and designing and visual is something which attracts you? So I initially studied communication design from my university back in Cyprus, and after graduating, I was trying to understand what is the landscape of, like, you know, the creative scene in Pakistan itself. And I did the first thing as, like, you know, going for jobs and stuff, and I always felt like I hated my job, and I always felt like these agencies are doing certain things, and I don't blame them. It's just how corporations work, I guess. And that kind of, I had this notion that I need to start an agency or like start my own studio or my own practice with like a few collaborators. But then that just made it like, not like, you know, that just gave me all of the answers that I need to do it now and as soon as possible. So I kind of pretty much understood, and there was a lot of self-learning and understanding that there's no blueprint of starting your own thing. So I pretty much did everything by my own self, a lot of trial and error, and started it out alone. And then eventually got a lot of great people to work with me, great clients to work with, and stuff like that. तो उससे जो है ना एक build-up हो गया था. Yep. The thing is कि आपने पहले ही बात टच की और मैंने भी बात टच की. One of the reasons why I actually started a creative agency myself is because मैं देखता हूँ जो creative agencies, SMMA, creative agency, marketing agency, digital marketing agency of Pakistan है, वो काफ़ी generic, काफ़ी old school है. All they know and all they think is, उनको लगता है marketing है ही शायद ads, Facebook ads, ठीक है, वही generic posting, वही why us, why we, वही Canva वाली post. And there's no element of creativity in those agencies. तो ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा था. I was actually doing my research and I found out Ajib Studios in that pursuit कि मैंने कहा अच्छा ये finally मुझे कोई ऐसी एजेंसी मिली है from Pakistan जो कि
genuinely कुछ unique, कुछ creative कर रही है. It's, you know, the whole thing about art is कि art is subjective. You know, it's not like Yeah. art कोई खास वो होता है कि ये अच्छा आर्ट है, बुरा आर्ट है. But it should be vibrant. It should be able to communicate, express, you know, whatever you are feeling at that specific moment and how you see the visualization. अच्छा, इसी को मतलब रखते हुए, you know, because I have been, मैं वही बता रहा हूँ कि I'm a founder myself. I'm kind of थोड़ा अर्ली स्टेज पे है मेरी, आपकी तो खैर मेच्योर हो गई भी है थोड़ी सी, मेरी थोड़ी सी अर्ली स्टेज पे है. But I was doing my research and I knew कि यार there's a big gap in the Pakistani market agency, creative agency की बहुत बड़ा gap है, क्योंकि जो एजेंसीज हैं भी वो ज़्यादा आउटसोर्सिंग वाली है. क्लाइंट्स बाहर से पकड़ा और उसको 2 लड़के बिठा दिए, वो कर लिया, ठीक है ना, अपवर्क की प्रोफाइल अच्छी कर ली, लिंक्ड कर लिया, लेकिन वो वाली वो यू नो, एक्सक्यूज मी एक सेकंड ज़रा, Yeah, sure. No worries. क्या हुआ है, मैं मीटिंग पे हूँ, आता हूँ. सॉरी फॉर दैट बड़ी. खैर, No worries, तो yeah, no worries. Yeah. पाकिस्तान आप तो फील कर रिलेट कर सकते हो इससे. खैर, तो मैं क्या ही रहा था कि यू नो मुझे बहुत बड़ा गैप महसूस हुआ, और वो गैप ऑब्वियसली क्रिएटिव एक तो दिल से भी चालू करता है कि कुछ बनाने का. आई वाज मोर इनटू द वीडियो साइड बाय द वे फ्रॉम स्टार्ट. Yeah. मोशन ग्राफिक्स साइड, वीडियो एडिटिंग साइड, वीडियो क्रिएशन स्टाइल साइड, ठीक है. तो मुझे गैप महसूस हुआ एंड आई वाज लाइक यार ये कुछ करना है, ऐसी एजेंसी बनानी है कि आप खुद भी एक ब्रांड हो. यू नो, द वे यू स्टार्ट योर ओन मर्च, you should be a Yeah. quality yourself rather than you making other people a brand. You should be a brand yourself. Anyhow, that's why I really loved your work and I have been a big fan. ठीक है ना, तो ये fan boy moment भी हो गया, and it's a good chance to, you know, learn from you as well as a colleague as well. अच्छा, मुझे ये बताओ, if I were to ask you what makes a good design, what would you reply? Yeah, I feel like good design, it changes for everyone. For me, good design is something that for me, it comes from my feelings, you Intuition. know, and I feel like Intuition. intuition भी है और फिर मेरी feelings भी है, and I feel like once that is done, that is a good design for me, right? And I feel like once you're looking as yourself as a solo artist, I do have an art practice where I do make a lot of stuff. I have them printed, gallery shows, fine arts. I just do random things. That is very like a personal pursuit in, like, you know, pursuing something. But when it comes to like the studio perspective, right, the reason I had like a different creative come in is because I look at things in a simple way, and I think most of the designs are shit, okay? And I really have like a specific perspective, but that's my perspective. Mostly client भी एक perspective से आ रहा है, and usually जिनकी awareness है ना, वो लोग हमारे साथ ज़्यादा interact कर सकते हैं, हमसे collaborate कर सकते हैं. जिस client की awareness वही पाकिस्तानी 3-4 brands हैं, 3-4 designs हैं, so usually we can't really collaborate much because they don't have much to, you know, understand, much to be receptive about. So I feel like it's the more awareness you have about the world, about the design, about what other people are doing, the more your idea of what a good design is changes. Okay. I hope that makes. And कोई SOPs, कोई science है behind a good design, या फिर it's all intuition, या what you feel good? Yeah, I feel like there's one thing that is very important is having an eye for design. एक होती है ना कि some people just have an eye for design, no matter if you go to a 4-year design school or if you don't, or if you are 10 years in your experience, it's just having the eye for design. And usually I've understood that जो आपकी eye for design है ना, वो आपकी एक चीज़ होती है creative security. This term, I don't know if it's like a legit term, but I read this thing कि आप, the podcasts that you listen to, the shows that you watch, the movies that you watch, the restaurant that you visit, they all have a design system that they're kind of putting it out, right? That you kind of consume. Apple का एक specific design है, and Samsung का बहुत different है. Like if I like Apple, like there are certain things. So I feel like once you get used to a certain good design, right, that helps you build up कि हाँ मेरा भी design, or the way I create things, or the way I consume things, the way I judge a product, वो उस तरीके से आपकी train हो जाती है. But I feel like कि understanding, obviously the idea of understanding contrast, understanding hierarchy in design, the communication aspect, the visual aspect, and how the reader kind of understands, वो तो एक basic design principles होते हैं जो आपको follow करने ही हैं. I feel like once you really follow them, you get to a point where you're like, अच्छा, now I can break them, you know, and change a few things, experiment a few things.
But as a base of design, these are the pillars of design to understanding your typography, your contrast, you know, how the colors go together, how images go together, and everything else pretty much. सही है. I get that, you know, I get that, especially, you know, last वाली बात की है कि when you know the sciences really well, you can actually play around with them as well a little bit. Yeah. लेकिन उसके लिए आपको एक लेवल पहुंचना पड़ता है टू नो द साइंसेस कि कौन सी चीज़ किस लेवल तक एक्सपेरिमेंटल है और किस लेवल तक एक्सपेरिमेंटल नहीं है और किस ये Mhm. कितना प्ले अराउंड कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते. You talked about Pakistani market and I don't know if you're आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं भी है कि नहीं, लेकिन Pakistani market में how do you sustain, you know, because I have had really bad experiences with Pakistani market, and they just, you know, they just don't vibe with you and they just don't understand what you're trying to make and trying to say or trying to, you know, create. Yeah. तो उसको कैसे डील करते हो? How you make yourself sustainable as a Gen Z, you know? Yeah. I don't know. You can tell me more about कि Spotify से क्या deal हुई हुई है आपकी और pop up artist से क्या deal हुई हुई है. But what it seems is कि that's more of a contractual base, you know. So Yeah. how do you sustain a Gen Z from contractual based contracts? Acha, so I think one thing that you need to understand, there are like a lot of questions in the same question. कि पहली चीज़ तो the experience, right? I feel like initially I also had like a very bad experience, and then I would blame the client itself. कि आपको नहीं समझ, आपको ये नहीं. But I feel like I took a step back in understanding you need to, जो आपका portfolio है, that's like your winner, right? कि portfolio is kind of what opens the door to a lot of things. Make the portfolio that you want to work on. सही है. वही काम आप दिखाएं जो आप करना चाहते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी ना दिखाएं. So I kind of made that very clear, and I think there's this one designer, Sana Nasir Koi Nahi, on Instagram. She said one thing, that just show the work that you want to do. It's very simple. 4 projects of the things that you absolutely love. You aren't really differentiating between, होता है ना कि ओ मार्केट में ये चल रहा है ये भी दिखाते हैं, मार्केट में ये चल रहा है ये भी दिखाते हैं. उसमें क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को बता रहे हो मैं ये भी कर सकता हूँ मगर मैं क्रिएटिव भी हूँ. फिर आप क्लाइंट को बोलो वी डू दिस, येस और नो. क्लाइंट को आप ऑप्शन दे दो, अगर होगा तो इस तरीके से होगा, नहीं होगा तो गुड है, सही है. वंस आई अंडरस्टूड दैट, आई ओनली शोड द थिंग्स इन माई पोर्टफोलियो that I want to do. So that means I will enjoy the work. And then obviously you have limited your client base, but it's better to be a limited niche design studio rather than being a generic one, because there's a lot of competition there and a lot of that, right? And when it comes to sustaining, obviously having an international client base is what helps you sustain and also help you thrive, right? But that doesn't mean the local community doesn't have enough to offer you, and they do, right? So when we talk about, okay, the local art scene, yes, it is picking up when it comes to the local art, music, fashion scene, and people are investing money because they know that they will get that money back also one way or another, right? And when it comes to like अगर आप लाहौर scene का देखें, Karachi, there are amazing cafes coming out, amazing restaurants, and you can see that this is like international level stuff, like the stuff that you, whenever you go to Dubai or any like somewhere out of Pakistan, you see like इतनी अच्छी चीज़ें वही आप पाकिस्तान में देख रहे हैं. So that means the same people are investing their money here, investing their time here, and they would love to invest in local resources. One, because why not have a Pakistani product and a Pakistani designer or a studio? Communication भी आसान होती. Second, obviously it's cost effective कि आप पाकिस्तान में प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एक पाकिस्तानी एजेंसी कर रहे हो. बट आई फील लाइक इट ऑल कम्स डाउन टू जो आपका पोर्टफोलियो है ना, जो आपकी ब्रांडिंग है, वो रिफ्लेक्ट करे जो आप काम करके देंगे, तो एक्सपेक्टेशंस अलाइन हो, राइट? और अगर एक्सपेक्टेशंस अलाइन नहीं हो रही तो इसका मतलब हमारा एक एजेंसी का प्रॉब्लम है. आई फील लाइक 90%, बिकॉज दे हैवंट रियली यू नो branded themselves in a way कि client की expectations अगर different हो रही हैं, that means the agency didn't brand themselves in a good way. That's a brilliant advice, by the way, for everyone, you know, कोई भी एक freelancer या कोई भी emergency owner या कोई भी professional है इस field में, and they, you know, they are looking for clients. Do not be, you know, ऐसा हो सकता है कि आपकी एजेंसी के multiple वो हो, you know, multiple expertise हो, ठीक है, आप इसमें भी अच्छी हो, इसमें भी अच्छी हो, इसमें भी अच्छी हो. There's no harm in that, but you know, you need to understand that before you're pitching to someone, you need to understand what they actually require from you, और उसी हिसाब से दो उनको प्लेट में 3-4 options, ताकि it would be easy for all of you to align and, you know, कहते हैं to get together. So that's a very good advice, by the way. अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने देखा है वो OpenAI का सोरा, जो जी जी बन मैंने गया देखा है.
कैसा लगा? Yeah, बेहतरीन. I think it's beautiful. And अच्छा. I think it's a game changer. But at the same time, I feel like with the whole AI thing, right? पाकिस्तान में भी चैट जीपीटी आया, डाली आया, मगर पाकिस्तानियों ने लाइक जनरली क्या किया? इमरान खान लुकिंग पुअर, ठीक है, जॉन सीना ईटिंग समोसा, हमने वही बनाया, सही है, हमने उससे आगे कुछ किया नहीं. तो आई फील लाइक ये सोरा भी आगे ना, जो पाकिस्तान में लोग इतनी टेंशन ले रहे होते हैं, देर आर फ्यू पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड एज लाइक क्रिएटिव डायरेक्टर्स के, उनको पता है इसका पोटेंशियल क्या. अच्छा, हमारे पास अगर ये है, हम क्या कर रहे हैं, राइट? बट जो नॉर्मल लोगों को, मुझे लगता है किसी को नहीं फ़र्क होना चाहिए कि एआई क्या करेगा, आपकी नौकरी लेगा. अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपकी क्या नौकरी लेगा, आई फील लाइक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट पीपल. सही है, ऐसा ही है. नहीं, लेकिन एज अ क्रिएटिव एजेंसी क्या लगता है? डू यू सी दैट दैट इज अ एसेट, अ टूल, और समथिंग व्हिच यू फील थ्रेटेड ऑफ? यार आई फील लाइक कि अगर द मेन थिंग इज़ टू यूज़ वीडियो एज लाइक अ वेरी बिग रिसोर्स, राइट? कि आप वीडियो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एंड हैविंग लाइक अ टेलर वीडियो, ऑब्वियसली दैट डज इफेक्ट अ लॉट ऑफ लाइक प्रोडक्शन हाउसेज. बिकॉज आपको एक कॉपरेट शूट करना है ऑफ 10 people वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री, उनकी शर्ट पे ये लोगो है, ब्ला ब्ला. Now, if that all can be done in 2 days on a AI software, of course that is going to affect them. But I feel like how, obviously effect to hoga and this is coming, there is no way around it, but it's just kind of navigating how to make the best out of it. I still feel like it's an asset, the same way I feel Dali, Mid Journey, all of these are assets which are helping me, you know, kind of pursue what I already have, but also make it better at the same time. सही है. और कहाँ देखते हो 3 साल में जीप स्टूडियोज को? इस चीज़ को, yeah, I think it's just like working more in like of course bigger projects, blah blah. I feel like that's a एक trajectory. काउंटर सवाल पूछता हूँ, एक फॉलो अप सवाल पूछता हूँ. वो ये है कि हाँ. अजीब स्टूडियोज क्या एक पैशन प्रोजेक्ट है जो कि यू आर कंफर्टेबल विद कीपिंग इट नीश, और डू यू वांट टू स्केल इट अप एंड मेक इट mass? Yeah, Ajeeb Studio, I'm scaling it up since the day I, like, established it, but obviously on my terms, right? Ajeeb Collective itself, like my own fashion brand, that is something which is a niche brand, right? That is supposed to have its own वो, because at the end of the day, Ajeeb Studio is a service based studio. आपको एक सर्विस चाहिए, हम वो ऑफर करते हैं. But I feel like we need to, like, in 3 years I actually want to be uh, like, I wish to pioneer a design movement which is called Ajeeb, right? क्योंकि हमारे हमने पूरी हिस्ट्री ऑफ डिज़ाइन में पढ़ते थे, अच्छा डिज़ाइन मूवमेंट ही आई है, डिज़ाइन मूवमेंट ही आई है. तो आई वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन वेर आई हैव अ डिज़ाइन मूवमेंट. सो I feel like for that I need to have a very big catalog, a bigger community, and places where I've like established my design. And I feel like अभी मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, ये आर्टिस्ट आ रहे हैं, इनके साथ हमने बनाया हुआ है, ये एक शूट हुआ है हमने किया हुआ है, ये कैफ़े आ रहा है हमने इस पे काम किया हुआ है, तो वी लाइक वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सीन. सो आई फील लाइक वही कॉन्ट्रीब्यूशन को 10x लेके जाना है विद मोर कोलैबोरेटर्स, बट एट द सेम टाइम make a lot of money also, so just kind of go in that trajectory basically. अच्छा, अजीब के अलावा भी आई थिंक आपको कोई है 2 स्टार्टअप्स, और या फिर इसमें आप कोई आपके यू आर वन ऑफ द को-फाउंडर्स? Yeah, I feel Radical X is like an edtech thing with my friend Talha, and we have also an extended team. उस पे भी हम काम कर रहे हैं because I still am very passionate about education and teaching and edtech. So we kind of started that, and we've been working around it in teaching, doing courses, building an AI model that teaches you. तो वो थोड़ा सा एक और हमारा स्टार्टअप वहाँ पे चल रहा होता है. गुड सीन है, अच्छा सीन है. अच्छा, तो एज यू टोल्ड अर्लियर, मेरा काइंड ऑफ सेम है बाय द वे. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. मेरी एजेंसी का नाम है सोफर मीडिया. इट्स मतलब ये है तो वजूद में तो कोई 2022 से है, लेकिन मैं कोशिश उसको लोग ही रखा है. अब मैं फाइनली उसको इस साल जो है ना थोड़ा सा उसका वो प्रॉपर लॉन्च करने जा रहा हूँ. सोफर मीडिया नाम है, एंड माई होल फिलोसफी इज द सेम विद दैट. आई डोंट वांट इट टू बी जस्ट अ क्रिएटिव एजेंसी इसमें हम कोई आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं. आई वांट इट टू बी क्रिएटिव फैक्ट्री. मतलब लोग क्या, अच्छा यार सोफर मीडिया कुछ कर रहा है, क्रिएटिव हुआ कुछ कर रहे हैं, मतलब मर्च भी आ रही है, पेयर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, कुछ सो चीज़ें हो रही है. अदर देन दैट मेरा भी ही काइंड ऑफ विजन है कि आई वांटेड टू टेक इट अ लिटिल बिट मोर,
थोड़ा सा आपको जो कि थोड़ा सा हमारा सप्लाई डिमांड का भी इशू है। हम लोग अगर ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो देंगे किसको? तो हमें डिमांड हाँ की भी थोड़ी सी ना इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें अवेयरनेस भी थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस, जिनकी एजेंसी थोड़ी सी ज़्यादा वो है, वाइब्रेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा। अदर देन दैट मेरा तो ये है कि फॉर रियल के ना आप कंटेंट से इम्पैक्ट करो लोगों की लाइफ्स को, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर इट्स इन माई हेड, और हम काम कर रहे हैं ऑन हाउ वी कैन डू फिलंथ्रॉफी थ्रू कंटेंट, ठीक है, एंड गिविंग आउट टू द सोसाइटी थ्रू क्रिएटिविटी। उसमें मेरे कुछ 4-5 मेरे हैं थे इनमें स्ट्रीम से कैसे जो है ना हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं, कैसी स्ट्रीम फनल बना सकते हैं जिससे पैसे आए, और वो आए उन्हीं के लिए, ठीक है, वही NGOs वगैरह के लिए आए, लेकिन वो आए थ्रू आर्ट। तो उसमें NFTs भी हो सकते हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है। तो इस तरह के ना हमारे से में भी, मेरे से भी यही है कि आई वांट टू, एक तो जरी बात है, द थिंग इज़ कि द रियलिटी इज़ कि यू लिव इन पाकिस्तान। जितना मर्जी आप जो है अपने एजेंसी को लिख दो कि वी लिव इन ओहायो या लॉस एंजल्स, आप रहते पाकिस्तान में ही हो। That's just हाँ who you are. अगर ये अच्छाई है, बुराई है, ये आपकी है, ये हकीकत ही है, आप पाकिस्तान में रहते हो, एंड आप मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट रिलेटेबल हो ही पाकिस्तान में सकते हो, ठीक है। अपनी कम्युनिटी में, अपने ट्राइब में ही आप सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हो सकते हो। यू नो वन वांट्स टू बी अनदर गोरा, ठीक है, रादर देन यू कैन yeah बी द फर्स्ट बिलाल और फर्स्ट अरीब। तो आपको समझना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ भी है कि वीकनेस भी है कि आप इस मुल्क में हो, ठीक है। आपकी अपॉर्चुनिटी भी यही है, आपको इसी मुल्क में ऑब्वियसली आपने पैसे चाहिए, वो डॉलर्स में चाहिए, ठीक है, यूरो में चाहिए, तो आपको क्लाइंट्स लेके आने पड़ेंगे सस्टेन करने के लिए। लेकिन टू अ पॉइंट आपको यहाँ पे भी अपने आपको 2-4 साल बाद दाखिल इतनी अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, ताकि यहाँ से भी आपके क्लाइंट्स निकलना शुरू हुए और यहाँ पे भी आपका एक ब्रांड बने। तो काफ़ी हम लाइक करते हैं, इसलिए मुझे बड़ा एक्साइटेड था कि यार अरीब से बात करते हैं। शायद लोगों को पता भी ना हो कि हु अरीब इज़ और हु बिलाल इज़, बट क्योंकि हमारी एजेंसीज काफ़ी सिमिलर हैं व्हाट आवर विजन एंड फिलॉसफी इज़, प्लस ऑब्वियसली मेरी थोड़ी कंटेंट साइड, थोड़ी वीडियो साइड पे है, अब थोड़ी डिज़ाइनिंग साइड पे है, ठीक है। तो दैट्स वेरी नीच डिफरेंस। लेकिन अदर देन दैट जो हमारी विजन्स हैं और जो हमारे द वे वी सी क्रिएटिविटी इट्स काफ़ी अलाइंड। मतलब मैं पहले भी आपको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी देर से, तो आई सी यार इससे ना बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन हो सकती है। अब मुझे ये बताओ कि कोई मूड है आपका, कोई अजीब अजीब स्कूल टाइप खोलने का? मतलब एड टेक की हमने बात तो की है, लेकिन हाउ डू यू सी बिकॉज एक बड़ा इशू हमें आता है, मुझे तो आता है कि टैलेंट ही नहीं मिलता उस लेवल का, ठीक है, और जो मिलता है उसको आपको 3-4 महीने थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उस पर, इवन अगर आप उसको हाईली पे भी करें। हाँ तो उस इशू को कैसे रिजॉल्व करते हो आप? यार आई फील लाइक कि मैंने लाइक आई डू कोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम राइट last I did a course it was a course with my friend Haris who's a Livane Haris, he's a artist based in Lahore. So मैं जब भी कोर्सेज करता हूँ ना आफ्टर दैट आई डू एन ओपन कॉल ऑफ एन इंटर्नशिप। तो आपने मेरे साथ 1-2 हफ्ता कोर्स किया एंड इफ़ आई सी उन्हीं स्टूडेंट्स में से मैं कुछ लोगों को लेता हूँ इंटर्नशिप पे 1-2-3 महीना इंटर्नशिप एंड देन आई bring them in part time and then full time because I realized that no matter if they've graduated from the most prestigious art school in Pakistan, they are mostly shit, right? So, and there's no other word to kind of describe because I think there's such a big big gap between their portfolio and most of them don't even have portfolios. जैसे मतलब एक डिज़ाइनर के पास वेबसाइट नहीं होती, बिहांस नहीं बना होता, लाइक अभी मेरे पास 200 ईमेल्स आई हुई हैं ऑफ डिज़ाइनर्स बट वो PDF भेज रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती, अब तो चैट GPT से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक वो गैप है और मुझे लगता है कि आप किस ग्रास रूट लेवल पे काम करोगे ये फिक्स करने के लिए, राइट? इट्स सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी if you think about it इस तरीके से। तो I've done courses and whatever, I've thought about scaling it, but the thing is the scaling matter is like oh I need to get 10 more teachers like me or better than me, right? फिर वो एक मसला आ जाता है कि अच्छा आप फिर वो करो, फिर आप सप्लाई डिमांड। सो लाइक हैविंग लाइक अ डिज़ाइन स्कूल इन पाकिस्तान इज़ अ वेरी इट्स लाइक अ वेरी बहुत आगे का है कि लाइक हाँ होना चाहिए, हो सकता है, मगर फिर वो एक ना नीश में रह जाता है बिकॉज डिज़ाइनिंग में पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी आवाम है वो देखती है हाँ हम घर से बैठ के पैसे कमा सकते हैं, हम इतने डॉलर कर लेंगे महीने के और उनका यार हमारा घर का खर्चा चल जाएगा, राइट? और विच इज़ गुड, ठीक है, बट देन दे आर पीपल हु आर
looking at it differently. अच्छा ठीक है, now what, how are we pioneering this in design, how are we creating this solutions, कैसे ला रहे हैं, blah blah. तो I feel like उसके लिए ना बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है एक किसी को. तो अब हम क्या करते हैं, इंटर्नशिप पे लाते हैं, they work with me, Maham and the rest of the team. Once that person kind of evolves into our culture, right, फिर we bring him into our team, राइट. अब वो कोर टीम में आते हैं, फिर इवॉल्व करते हैं, क्योंकि आई रियलाइज़ कि ऑब्वियसली मुश्किल है टैलेंट ढूंढना अच्छा. और पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इट्स नॉट द स्कूल दैट दे कम फ्रॉम. इट्स लाइक वो अपनी खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितनी कर रहा है, सेल्फ लर्निंग कितनी कर रहा है. जितने भी इलस्ट्रेटर्स हमारे पास आए स्टूडियो में, ऑल ऑफ देम डिड सेल्फ लर्निंग. दे जस्ट हैड प्रोक्रिएट, वो प्रोक्रिएट पे इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 3-4 साल से, एंड नाउ दे coming like into like a professional surrounding. Now they have evolved that design into a better, you know, outcome basically. So सही. I think it's तो just if understanding you're के yeah, नहीं बोले. नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, कंटिन्यू नहीं, करो, मैं कह थोड़ा रहा सा हूँ कि डिले है माइक. अंडरस्टैंडिंग की हर किसी की वो क्या है, लाइक पाकिस्तान में ट्रजेक्ट्री ना बड़ी बहुत लोगों की बहुत डिफरेंट है. तो मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है कि अच्छा यार आप इंटर्नशिप करोगे इस तरीके से भी, यू नो, वर्क विथ यू, एंड यू ऑल्सो वर्क वंस यू कम ऑन इंटर्नशिप, यू जस्ट वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स विद अस, राइट. एंड दे आर वेज दैट इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ समथिंग, आपको बेसिक्स बेहतर करनी है वो तो आप अपने टाइम पे करोगे, बट वंस यू काइंड ऑफ डेवलप इन, देन वी टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल, यू नो, टू बी पार्ट ऑफ आवर कोर टीम बेसिकली. या बेसिकली ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होना चाहिए, यू नो, बिकॉज कल्चर एंड वाइब इज रियली इंपॉर्टेंट क्रिएटिव. वो या बिजनेस मॉडल क्या है आपका, बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल क्या है आपका, इफ यू वांट शेयर. यार बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल किस हवाले से? बिकॉज हाउ वी काइंड ऑफ वर्क इज, मतलब डू, या बोले या बोले. या नहीं नहीं, आप बोलें, आप एक्सप्लेन मैं कह करें रहा फिर हूँ मैं कि शायद. मैं कह रहा हूँ कि मतलब हाउ डू यू रीच आउट, और डू यू वेट क्लाइंट्स टू रीच आउट टू यू, ठीक है, ये तो एक हो गया. अदर देन दैट, हम्म. कौन से लिंक्डइन पे कुछ मतलब रीच आउट करते हो, कोई प्रोफाइल्स है, मार्केट प्लेस पे जाते हो, मतलब कैसे क्लाइंट्स कैसे लेके आते हो अच्छा, so एट द एंड ऑफ द डे. initially when I started off, it was very या simple. I understood that Fiverr पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है. Fiverr की मेरी अभी भी प्रोफाइल है, अगर कोई क्लाइंट रीच आउट करता है मुझसे बात कर लेते हैं वगैरह, बट इट्स नॉट आवर मेन सोर्स. आवर मेन सोर्स इज पीपल हु कम टू आवर एजेंसी डायरेक्टली, राइट. एंड दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द नेटवर्क इटसेल्फ, राइट. कि हमने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, और वो नेटवर्क बेहतर होता है तो हमारी क्लाइंटल बेहतर होती है, राइट. सो देर इज़ नो लाइक लिंक्डइन फनल, देर इज़ नो रीच आउट, नो डेवलपमेंट. हमारे पास यूजली होता है हमारे नेटवर्क से लोग आ रहे हैं, and we are constantly, the more we are branding ourselves, the more we are marketing ourselves in, like, you know, on Instagram, on LinkedIn, the more eyes we are getting. And once we get more eyes, the right people connect with us, and then we take the conversation forward. So I feel like obviously there's a way that you can have like a development team, sales team वो reach out कर रही है, वो ये सब कर रही है. That is also a model that I haven't really delved into yet, because I feel like अभी हमारे लिए इतना overwhelming हो जाता है with the projects that we have and whatever. And the projects that we get are much more, because we need very specific projects, right, specific kind of things and specific way of doing it. So I feel like it just works out better when people are reaching out to us, you know. It helps us. And then sometimes we also reach out to people like, oh, aapka brand हमें बहुत पसंद है, we'd love to work with you, let us know if you can have a conversation, right. And the first thing they do is they open our website, our Instagram, they're like, okay, these people are legit, right. And then the conversation kind of takes from there. अब इस पे एक चीज़ है कि यार यू नो एक सेकंड दे बिकॉज, सकते हैं, सॉरी, मैं ज़रा एक सेकंड दीजिएगा, सॉरी. हाँ हाँ एक बिल्कुल सेकंड. बिल्कुल. यप, सॉरी बिलाल. अच्छा, सही है. हम्म. सो मैं पूछ ये रहा था कि क्योंकि यू नो एजेंसी हमारी भी है, एंड द थिंग विद यू नो प्रोजेक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोर्टफोलियो बड़ा इन्हांस करते हैं. स्पॉटिफाई से आपने डील कर ली, यू नो इट्स अ बिग बूस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो. किसी एक पॉप आर्टिस्ट का मिलकर आपने कोई एल्बम का कवर बना लिया, इट्स अ बिग हम्म. बूस्ट फॉर यू. आपकी पॉपुलैरिटी में बहुत बूस्ट है, आपकी पीआर में बहुत बूस्ट है, ठीक है. इट्स अ बिग बूस्ट फॉर ओवरऑल योर एजेंसी. या लेकिन ये एक वन टाइम या टू टाइम या थ्री टाइम ट्रांजेक्शन होती है, या फिर वंस अ ईयर ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है. ये वो पर मंथ या फिर पर वीक वाली ट्रांजेक्शन नहीं होती. तो हम्म. हाउ
क्या रिजर्व्स रखते हो, कैसे सस्टेन कैसे करते हो फिर सैलरीज को, वीकली सैलरीज, मंथली यार सैलरीज को? आई थिंक कि पहली चीज़ तो ये है कि जो सैलरीज है मेरी वो दोज आर बेस्ड विद आर रिटेनर क्लाइंट्स जो हमें मंथली दे रहे हैं, राइट? सो वी एग्जैक्टली हैव 3 to 4 retainer clients abhi currently, and those are there's like this medical complex in the US, right, जो डेवलप हो रहे हैं, हम उनके हर चीज़ संभाल रहे हैं. We have norms in Pakistan, the chips, they're like healthy baked chips, उनके साथ हम काम कर रहे हैं. फिर एक wood construction की कंपनी है सऊदी अरब में, and they're like certain clients like this. So most of them are very like corporate work, right? But there are so वो हमारे पे रिटेनर क्लाइंट्स होते हैं. बट हाउ वीव काइंड ऑफ वर्कड विद कि there are a lot of one time projects, but जो आप काम देख रहे हैं, you are seeing the best of the best work on LinkedIn or on my website, right? We do a lot of different work in a lot of different realms. So we are working with a clothing line. So one way or another, there is no like a proper structure to like sustain, but we know कि अच्छा हमारे ये bills हैं, ये salaries हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे, टेक एक्सपेंसेस, ये सारे वंस दैट इज कवर्ड, राइट, वो एक होता है ये मार्क हमारा होता रहे. और अल्हम्दुलिल्लाह वंस वी आर लाइक काइंड ऑफ इन द गेम, इन द सीन इट सेल्फ, हमें कॉन्स्टेंटली काम आ रहा होता है कि वी कैन सस्टेन इट एंड ऑल्सो have projects where like projects like Spotify is not, this was like with Spotify we worked on like 6-7 projects consistently, right? एक साल में उनकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, हमने उस पर काम किया. उनका एक इवेंट हो रहा है, हमने वो पूरा ब्रांड किया. इवेंट के बाद उनके कुछ कैटलॉग्स बन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं. सो यू वुड नॉट इवन अंडरस्टैंड कि एक क्लाइंट आपको, इवन वो रिटेनर नहीं है, दिस इज लाइक वन प्रोजेक्ट, दे कैन गिव यू सो मच वर्क if you are offering a lot of solution, because at the end of the day as a creative agency you need to give creative solutions despite if it 3D मांग रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. You just need to have a creative team that solves their problem basically. एग्जैक्टली यही बात है. एंड यू नो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू सेड इज रियली इंपॉर्टेंट, और यही मेरा भी फिलॉसफी है. द होल रीजन व्हाई आई वाज रियली व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू द क्रिएटिव सीन, मैंने पहले कुछ जगह पे जॉब्स खुद भी की. एंड आई लिटरली इंटरव्यूड ऑल दीज पीपल जिनके पास करोड़ों रुपए के, बिलियंस ऑफ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे बड़ी बड़ी फर्म के साथ ऑफ मार्केटिंग. एंड ऑल दे यूज्ड टू डू वाज, मतलब मैं खुद भी एक ऐसी करोड़ रुपए की, लिटरली 3 करोड़ रुपीस इफ आई बी फुल डिस्क्लोजर की रुपीस की एक मार्केट का मैंने किया था. रूट्स कॉलेज एक है यहाँ पे लाहौर में ही है, ठीक है? आई डोंट नो कराची में है कि नहीं है, लेकिन लाहौर में एक है. कराची में नहीं है, उसकी एक लाहौर हमारे में पास है. थी, हमारी एजेंसी में काम किया. तो उसमें मैंने काम की, उसमें मैंने मतलब उसकी टीम में स्ट्रेटजिस्ट था मैं. एंड ऑल दे यूज्ड टू डू वाज वही पोस्ट है कि वी विल हेल्प यू विद बी ए साइकोलॉजी और ए लेवल्स और ये फैकल्टी, वही टिपिकल पोस्ट थे. एंड दैट वाज इनफ फॉर देम, ठीक है? एड्स पे रिगरस एड्स, ठीक है? लाइक मिलियंस ऑफ रुपीस ऑन वन पोस्ट स्पेंड हो रही थी, ठीक है? तो उससे मुझे बड़ा महंगा यार ये, मतलब आपके पास 3 करोड़ का अगर बजट कैप हो तो आप इतना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है? आप इतना कुछ खेल सकते हो, आप इतना कुछ क्रिएटिव कर, ये भी कर सकते हो जो कर रहे हो. ये चूंकि इतना सब, ये तो बहुत सारी से कर सकते हो. लाइक लिटरली यू हाँ हायर्ड अ 50,000 के ग्राफिक डिजाइनर, वो आपको कर देगा आराम से सारा कुछ. तो आप हाँ तो खेल नहीं रहे, आप कुछ क्रिएटिव कर ही दे रहे, ठीक है? तो आई फेल्ट कि ना सिर्फ ये लिमिटेशन है, वो जाती उनके साथ क्लाइंट से भी जाती है ये, कि आप उसको एक बड़ा ही मुनासिब सा सोल्यूशन दे रहे हो एक बड़ी अच्छी अमाउंट में. सो आई फेल्ट अ गैप इन देयर कि यार ये, मतलब यू नो आई एम समवन हु हैज टू डू इट कंटेंट क्रिएशन. मतलब इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, मेरा ये था कि आई वाज रियली यंग, आई यूज्ड टू बुली अ लॉट. तो मैंने ना आई फाउंड कंटेंट क्रिएशन एज अ वे टू एक्सप्लोर माय सेल्फ, एज अ वे टू ग्रो, यू नो, कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए. I started making videos 2017 से शुरू की, you know, it's like 24 now. वीडियोस वगैरह बनाई. एंड यू नो when you the groove, अब तुझे तो आपने बात की सेल्फ लर्निंग की. जब आप एक वीडियो बना रहे होते हो तो असल आप वीडियो बना रहे होते हो, आप कैमरा एंगल सीखते हो, आप माइक को कैसे रखना है ये सीखते हो, आपने बोलना क्या है वो सीखते हो, एडिटिंग सीखते हो, पोस्ट प्रोडक्शन सीखते हो, थंबनेल बनाना सीखते हो, तो सब कुछ सीखते हो. उसी प्रोसेस में मैंने ना जब रिगरसली अपने काम शुरू किया और हमने कोलैब्स किए शहजाद से, जुनेद अकरम से, ठीक है? और मुलाकातें तो ढेर सारी की हमने, यू नो, लाइक 50 और क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान के, जिनसे हमने बातें भी की, उनका काम भी किया, सब नजर गिग्स भी की, सब कुछ किया. तो इन दैट प्रोसेस दैट्स हाउ आई लर्न क्रिएटिविटी एंड यू नो कंटेंट क्रिएशन ऑनेस्टली. उसको मैं थोड़ा मैंने मैच्योर किया, थोड़ा सा सीखे. अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा फॉर्मलाइज करें, इसको अगर थोड़ा सा साइंस में लेके जाए, स्टेप बाय स्टेप लेके जाए, ब्रेक डाउन करें तो कैसे कैसे होगा, वो मैं थोड़ा सा बाद में सीखा.
लेकिन Hmm. आई न्यू आई हैड बंडल फुल ऑफ आइडिया कि हम कैसे कैसे जो है ना लोगों को कैप्चर कर सकते हैं, लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, लोगों को बेच सकते हैं अपना आप, ठीक है। तो ये मुझे गैप नजर आया। और वही बात है दैट यू शुड बी योर ओन प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बताना ही चाहिए, डोंट टेल देम व्हाट यू डू, शो देम। Yeah. मतलब दिखाओ, आपका काम भी ऐसा, आपकी आपको वो होना हाँ. चाहिए, आपकी दलील होनी चाहिए कि लोगों को इधर उधर देखना ही ना पड़े, उनको पूछना ही ना पड़े कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो। वो आपसे बल्कि पूछे कि आप ये भी कर सकते हो प्लीज़, ठीक है ना। दैट्स हाउ सॉलिड योर ब्रांड शुड बी, जो कि नहीं है। हाँ. मतलब मैं एक्सपेरिमेंट किया था एक, मैंने लिटरली अपने बेस्ट लोगों को जो कि टेक में है या फिर सॉफ्टवेयर में है एक्सेट्रा, उन्होंने पूछा कि मुझे कोई से दो पाकिस्तानी क्रिएटिव एजेंसीज का नाम बताओ, ठीक है। तो अबाउट 90% ऑफ देम वर लाइक, यार है तो बहुत, हज़ारों में है, लेकिन नाम किसी का भी नहीं आ रहा, ठीक है। एंड आई वाज लाइक यही तो मसला है कि हज़ारों में है Hmm. और हज़ारों, और वो करोड़ों भी कमा रही होंगी, ठीक है ना, शायद अब से हाँ. ज़्यादा ही हाँ. कमा रही हो, सच्ची बात तो ये है, अब से ज़्यादा ही कमा रही Hmm. होंगी। लेकिन स्टिल कोई उनकी वही नहीं है, ना खुद की कोई एंटिटी की नहीं है, खुद की कोई ब्रांडिंग की नहीं है, विच विच फेल्ट लाइक यू नो। उसकी वजह से मुझे हुआ कि नहीं यार, मैंने कोई ऐसा कुछ लाना है, बेशक पैसे थोड़े कम भी हो जाए, लेकिन ना एक ऐसा है कि लोगों को देख के मज़ा आए, यार क्या चीज़ है, लोग रिलेट कर सकें। खैर, Hmm. तो लोगों का व्यूअर का टेस्ट कैसा है पाकिस्तान में? आई नो कि किस जो तरह? आपकी ऑडियंस, व्यूअर टेस्ट कैसा देखा है आपने पाकिस्तान में? आर्ट समझ आता है आपका एक व्यूअर को? Yeah, I think what I've learned with time is कि you need to नॉट लुक एट द व्यूअर एज के ओ इनको समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे तो वही बनाना है जो मेरा दिल चाह रहा है, ठीक है। और मैं क्लाइंट्स को हर वक्त मेरी जो कॉन्वर्जेसन होती है, अगर मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ अपने कि यार अच्छा हम ये करते हैं, मगर उसका होता है हाँ यार अभी हुआ नहीं है ऐसा पाकिस्तान में, तो हम ये करेंगे, तो ये रिसेप्शन और ये और ये और इस तरीके से सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ होती है कि आपको ना टेस्ट डेवलप भी करना होता है, और यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर perspective, stay true to the things that you want to do, and once you keep doing it again and again and again, it builds a theme. And once there is a theme, once there is a big catalog, there is more credibility, right? कि अब फॉर एग्जांपल, कि अब बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल है कि स्ट्रेच टाइपोग्राफी हमने हर वक्त देखी है कि फॉन्ट जो है ना जिस तरीके से है उस तरीके से करें। स्पॉटिफाई ने अपने पिछले से पिछले रैप्ट के अंदर दे जस्ट हैड स्ट्रेच टाइप। हेलवेटिका है तो उसको खींच दिया, क्या उनका जो अपना फॉन्ट है उसको लिटरली खींच दिया विदाउट स्केलिंग इट, एस्पेक्ट रेशो नहीं मेंटेन हुआ, राइट। वंस दे डिड इट एवरीवन वाज लाइक ओ हम तो ये कर सकते हैं। सो दे आर बीइंग वैलिडेटेड बाय दीज बिग ब्रांड्स व्हेन दे एक्सपेरिमेंट, राइट। कि हर जो ट्रेंड होता है ना, ये बड़े ब्रांड्स थोड़ा सा करते हैं, अब हर किसी को लगता है हाँ हाँ अब तो जायज़ है करना। आई फील लाइक वंस हाँ, यू रिवर्स इंजीनियर, आप पहले खुद कर लें, जायज़ वो बड़े ब्रांड करे कि ना करे, दैट डजंट रियली नीड टू, यू नो, एक आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई इंडस्ट्री आपको वैलिडेट करे कि नहीं आप अब सही कर रहे हो, आप करें। बाद में जब आप इतना कर लेंगे, यू बिकम द बाय, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, दिस इज़ अ लॉन्गर रूट इन building that up, but I do enjoy design as just the visual design and everything that, like बहुत सारी चीज़ें जो पहले 2006 में हो रही थी वो पाकिस्तान में अब हो रही हैं, कि कोलाज वाली चीज़ें और ये सारी चीज़ें, राइट। पहले लोग कर चुके, अब वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहे हैं, अभी हमारी वहाँ तक वो नहीं पहुँची, अभी बूमर्स को इतना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी ऑब्वियसली अब चेंज हो रहे हैं, राइट। हाउ द म्यूज़िक इज़ इंटीग्रेटिंग, जैसे PSL में, PSL की ब्रांडिंग, PSL के म्यूज़िक, PSL का सब कुछ, PSL जिस तरीके से कंटेंट को देख रहा है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बूमर्स थोड़ा साइड पे हो चुके हैं, दे आर मच मोर पीपल, मिलेनियल्स आर कमिंग इन, दे आर इन्वेस्टिंग मोर ऑफ देयर मनी इनटू द जेन जी, द मिलेनियल स्पेस, कि यार ये लोग हमारे लिए शायद एक सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट फर्स्ट बन चुकी है हर चीज़, नॉट TV फर्स्ट, इंटरनेट फर्स्ट, सो दे केटरिंग टू दैट। सो आई फील लाइक स्टेइंग लाइक नॉट बीइंग के अच्छा इनको समझ आएगा नहीं समझ आएगा, आई फील लाइक दैट वाज नेवर माय थॉट प्रोसेस, बिकॉज आई नो इफ आई पुट आउट लाइक अ वुमेन इन अ साड़ी, उसके पीछे मैं ग्लिच कर लूँगा, दैट इज़ गोइंग टू गेट मोर अट्रैक्शन, राइट। अदर देन दैट के अगर मैं वही चीज़ बनाऊँ जो मेरा दिल चाह रहा है, but I feel like there is more authenticity, more in satisfaction basically, in what I do from my heart, rather than doing something that's very generic right now. But when I get paid good money, I'll do anything generic. तो क्योंकि एट द एंड ऑफ वहाँ द डे पे वो पैसे हो, तो उनके पास है, पैसे तो हाँ बूमर्स के तो पास नहीं ना, भी है। जब मगर वो है कि वो आप मेरे
उस पे नहीं देख सकते, मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं देखेंगे, ना मेरी शायद वेबसाइट पे भी देखें, ऐसा राइट? ही है, ऐसा यू ही मे है। ओनली सी इट इफ़ यू आस्क मी अबाउट इट, बट जो मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा, मैं वही चीज़ आपको दिखाऊंगा विच आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ, राइट? So I can't, so that is the, I feel like the perception in the brand that you have to control, because once you do one thing good, right, कि आप बहुत एक कॉम्प्लेक्स, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ बना रहे हो, तो जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत डम तो नहीं बट बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, तो वो समझ जाएगा अगर आप ये कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो, राइट? तो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि ओ हम ये भी करेंगे ये भी, क्योंकि हमारे पास लोग, हम जैसे आई नेवर टेल एनी वन दैट वी डू सोशल मीडिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह ये सारी चीज़, इवन दो वी डू इट, राइट? सो वंस दे ब्रिंग अस अ ब्रांड, दे लाइक आप ये करते हैं, एंड दे डोंट आस्क अस मेनी क्वेश्चंस, because they're like, oh, if they're good at one thing, we assume that they are good at another thing. That's what basic human trust is, right? कि Yep. लोग आपको रिकमेंड कर लेंगे, लोग आपको हेल्प कर लेंगे, तो अब ये सोल्यूशन दे देगा. अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें वी आर डूइंग इंटीरियर डिज़ाइन फॉर अ स्पेस. आई हैव नेवर डन इंटीरियर डिज़ाइन, बट देर लाइक वो आपको इस तरीके से वी लाइक ओके वील डू इट. इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन इट इज़ रॉकेट साइंस, no hate to interior designers, but the thing is, for my client it was to understand, oh ये हमें एक अच्छा solution दे ही रहे हैं, we trust them to give us another good solution, ऐसा ही right? है। तो उस हिसाब से I now am like reaching out to my interior designer friends, they're helping me out in understanding, and that's it, you know. एंड ऑब्वियसली एज ए क्लाइंट पर्सपेक्टिव में देखो तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो 4 लोगों से मुख्तलिफ 4 काम करवाए। उसको उसको बेहतर लगता है, उसको इजी टू मैनेज लगता है जब वो एक बंदे से Exactly. 4 काम करवाए। मेरे पास एक आइडिया है, आई वांट टू प्रपोज यू ऑन लाइव पॉडकास्ट कि मैं बताया था, आई रियली वांट टू Mhm. मेक दिस थिंग कमोडिटी, मतलब ना एक कमोडिटी बनाना चाहते हैं। जब आई वांट टू कनेक्ट इमोशंस विद इट, आई वांट कि हमारी जो सिर्फ एजेंसीज ना रह जाए एट द एंड ऑफ द डे, कुछ जो है ना, बिकॉज अगेन I don't see you as a competitor. I see you as someone who is working with me and ठीक है ना, और creating the space bigger. Mhm. ठीक है। मेरे जहन में एक आइडिया था कि हम जो है ना किसी हॉस्पिटल में जाए with cards, play cards and goodies, creative goodies of inspirational stuff के बच्चों के लिए, especially for a child cancer hospital or something of that sort. वो Mhm. अपने वो भी मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन से में जाना है, कैसे जाना है, लेकिन मेन आइडिया इज दैट ऐसे कुछ जाए एंड वी प्रेजेंट दोज किड्स विद गुडीज जो हमने खुद बनाई हो। ठीक है। एंड क्या कहते हैं उसको, या वी डॉक्यूमेंट दैट एंड जस्ट वांट टू क्रिएट दैट इमोशन फॉर पीपल। नहीं, it sounds amazing, but I feel like डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम अपनी डिज़ाइन की भी मुझे लगता है वो बच्चा खुश होगा अगर हम स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के चले जाएं. ज़्यादा खुश मुझे लगता है वो तब नहीं, होगा, अपना बिकॉज आई डिजाइन थिंक से ऑब्वियसली स्पाइडरमैन। या हाँ, बट आई या फील लाइक कि उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, वुड दे हैव एन अप्रिशिएशन फॉर समथिंग, यू नो, इस तरीके से, और समथिंग अ बिट मोर ग्रैंड. आई फील लाइक दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, यू नो, व्हाट मेक अ विश डिड, राइट, और डज बेसिकली. या तो मेक अ या विश इज समथिंग अ बिट मोर, कि अगर उनको हम यू नो किसी से मिलवा दें, वो कर लें, दैट इज़ मच ऑफ अ इंस्पिरेशन बूस्ट फॉर देम rather than something which is like a goodie, you know. I feel like making your own toys, right, making your own sketchbook, making your, you know, certain kind of things, or also like a nice thing, you know, that's what I get from goodies उस तरीके से. But I feel like it's an interesting idea to kind of do, because वो लोग तो वैसे भी बेचारे sidelined ही होते रहते हैं. ऐसा ही है। एंड द होल पॉइंट इज जेस्चर एट द एंड ऑफ द डे। और पहली बात तो ये बच्चा Yeah. है, उसको उसको शायद जो है ना, उसको शायद इतना मॉनेटरी टर्म्स में इतना वो फैसिलिटी होता है, इतना वो फैसिलिट होता है इन चीज़ों से। ठीक है, फर्स्टली। Exactly. सेकेंडली जब वो एक छोटे से जेस्चर होगा ना, आई बिलीव कि मैं चूँकि ऐसा चीज़ें की हुई है, लेकिन विद मतलब कैमरा वगैरह के अलावा की हुई है, तो दो हाँ हाँ. स्मॉल थिंग्स दे टेक इट सो टू द हार्ट, और वो उससे चीज़ स्पेशल लेते हैं दैट इट्स जस्ट वंडरफुल। खैर, ये दिस इज वन ऑफ द आइडिया जो कि मेरे जहन में है। मतलब ये तो अभी एक लाइन किया ना, तो फिजिकल हो गया, थोड़ा डिजिटल भी है, हाँ. एक्सेट्रा। सो देयर इज अ कपल ऑफ हम्म. थिंग्स दैट आई वांट टू डू, जब थोड़े पैसे भी आ जाए, थोड़ी टीम भी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी कंटेंट भी बेहतर हो जाए, तो आई वांट टू हम्म. डू ऑल दिस स्टफ। ठीक है। अच्छा, फाइनली ये बताओ कि अगेन यू टोल्ड मी कि सिंपली कि हम व्यूअर को नहीं देखते, हम अपने आप को देखते हैं कि वंस वंस द प्रोडक्ट इज गुड इनफ फॉर मी, यू बिलीव कि यार ये लोगों को भी पसंद आ ही जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, दैट्स योर हम्म. फिलॉसफी बिहाइंड क्रिएटिंग कंटेंट।
सो आप ज़्यादा परेशान नहीं होते कि यार व्यूअर कैसा देखेगा कैसा नहीं देखेगा, उसको समझ आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, यू फर्स्टली यू मेक श्योर कि तुम्हें मज़ा पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है, एंड देन यूर लाइक कि ये बाय प्रोडक्ट है, व्यूअर को भी आ ही जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, तो वो तो हो गया। अब किसी बंदे ने अगर कोई क्रिएटिव एजेंसी को, या दो सवाल है। एक चीज़ ये, एक कोई बंदा है वो चाहता है कि मैं ना ज़रा अजीब स्टूडियोज बहुत मजे का काम करते हैं, तो मैं अजीब हम्म स्टूडियो से बनना चाहता हूँ। और ये क्या कहते हैं, मैं अजीब स्टूडियो से बनना चाहता हूँ और अजीब स्टूडियो से स्टूडियो खोलना चाहता हूँ। तो व्हाट हम्म एडवाइस would you give, the do and don'ts you would you give to them? Yet I feel like the advice is that do and do everything, you know, understand, and kind of do it. The other advice is if you don't have the appetite for risk, and it's a fine thing. There is nothing wrong with it. If you don't have the appetite to be broke from time to time, if you don't have an appetite to, sacrifice a lot of time, a lot of things, then don't do it, because it's a different thing in a corporate structure. Obviously वहाँ पे भी आप करते हो, मगर यहाँ पे आप अपने लिए कर रहे हो, so there is no end to it, you know. तो understanding that, and also surrounding yourself with people who are better than you, that's the major thing. Not surrounding yourselves where you hire 5 people under you for like 20,000 and now they call you boss, और आपको आपका जो है ना ईगो स्ट्रोक हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई सीन ऑन है हमारा. बट आई फील लाइक सराउंड योरसेल्फ विद विद पीपल हु आर बेटर देन यू, हु हैव मोर अचीव मोर देन यू, एंड मेक श्योर कि आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो टाइम के साथ साथ, टू कीप अप विद एवरीथिंग. सही है। Again, यही the whole purpose of this podcast for me was exactly the same as you said, कि I wanted to network पॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, नेटवर्क करें, हम कॉन्वर्सेशंस करें उन लोगों के साथ जो कि जनरली इस इंडस्ट्री में समवेयर अदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगेन इट्स नॉट के स्पेसिफिक एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स या एक्स नंबर ऑफ सेल्स ही हो तभी आप कुछ कर रहे हो। इवन इफ यू डूइंग समथिंग और आपके पास उतने नंबर्स नहीं है, फिर भी यू हसल एट दैट डे। ठीक है, तो मेरा होल पर्पस विद दिस पॉडकास्ट यही है कि एक तो मैं खुद पर्सनली सीखूँ, ठीक है ना, नेटवर्क करूँ, सीखूँ। सेकेंड, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल कि जो चाहते हैं सीखना, चाहे वो बनना चाहते हैं एजेंसी खोलना चाहते हैं अपनी, या दे वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और दे वांट टू बिकम अ डिज़ाइनर और व्हाटएवर, उनके लिए एक गाइडलाइन, एक प्रॉपर मास्टरी टाइप हो पॉडकास्ट के थ्रू कि वो कैसे जो है ना रोड मैप बना सकते हैं अपना। एंड थर्डली, आई वॉन्ट टू कमोडिटाइज दिस होल इंडस्ट्री दैट वी डू। आई वॉन्ट टू ब्रिंग पीपल कि आप बताओ अपनी कहानी क्या है, मैं बताऊँ अपनी कहानी क्या है, हम भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, अब भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो दैट्स द होल फिलॉसफी बिहाइंड दिस पॉडकास्ट एट द एंड ऑफ द डे एज वेल। अच्छा, कोई क्रेजी स्टोरी है कोई, काफ़ी अभी वो बिजनेस वाली बातें हो गई, काफ़ी उस तरह की बातें हो गई, क्रेजी स्टोरी है अपनी एज अ फाउंडर कि कभी जो है सैलरी का टाइम आ गया था और सिर्फ कोई एक्स अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हुई थी अकाउंट में, तो पता नहीं किसी से कोई रिजर्व से निकाल ली, या फिर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है अक्सर कि हाँ, रिजर्व से निकाल ली और अपनी जेब से देने पड़े कभी कभार, तो खुद जो है महीना नहीं, जो है ना ये तो फंका आई था। फील लाइक वो तो पार्ट ऑफ द गेम है कि ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. आई फील लाइक वंस द वन थिंग दैट साउंड्स वेरी फनी टू मी स्टिल इज देयर वाज अ सऊदी अरब की कंपनी रीच्ड आउट टू मी. दे वर स्टार्टअप, उनकी एक कोई ट्रैवल कंपनी बना रहे थे, एंड आई वर्क विद देम विद ब्रांडिंग देमसेल्व्स, हर चीज़ उनके लिए मैंने की. ठीक है, और मैंने उनको कहा था कि यार अच्छा क्या, मैंने कहा ठीक है, मैं मिनिमम जो सऊदी अरब में सैलरी होगी, मैं आपके साथ फुल टाइम काम करता हूँ पाकिस्तान से, एंड आई ऑल्सो हैड अ जॉब, सो आई वाज वर्किंग 2 jobs. ठीक है, सो आई वाज वर्किंग विद देम, सो आई वाज लाइक ओके, मिनिमम सैलरी 5,000 रियाल होती है, आप मुझे 5,000 रियाल दे देना. ठीक है, उन्होंने कहा हाँ, ठीक है गुड है, काम चल रहा है पूरा महीना. महीना ख़त्म हुआ, मैंने कहा अच्छा यार सैलरी भेजते हैं, आपको 5,000 रियाल आने थे, मैं बड़ा खुश था. दिस इज़ लाइक 3 years ago, 2-3 years ago, एक टाइम ऑफ कोविड राइट. तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा 5,000 आएंगे, कन्वर्ट कर लो, कितने लाख बन रहे हैं उस टाइम. आई वाज लाइक सीन ऑन है, सही है. मैं सोच रहा हूँ अच्छा ये लूँगा ये लूँगा. और इस टाइम पे नया नया स्टूडियो शुरू किया था. लाइक आई हैड लाइक वन प्रोजेक्ट बिफोर दिस, कोई 30-40 हज़ार रुपये का एक ब्रांडिंग की थी किसी की. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, ऐसे करके ना हो रहा था, सीन सीन अच्छा था अलहमदिल्ला. है ना, तो बट जब वो एंड में पैसे आए मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आए. मैंने कहा कि ब्रो क्या सीन है ये. अच्छा, मैंने क्योंकि पूरी एक वो की घर पे भी बातें कर ली ना यार, कि भाई आ रहे इतने लाख और ये वो लगे थे, तो दोस्तों मैंने में कहा भी हाँ होते बस हैं, ये कॉइन. हाँ, दोस्तों में भी भाई तेरे
PS5 का वो हाँ रिलीज हो हाँ रहा है, इंशाल्लाह PS5 हाँ, लेंगे। तो वो सारी जो इतनी हाइप क्रिएट कर ली और ये वो, और उसके और जब वो 5 साल है, मुझे याद, मैंने फिर अपना मैसेज देखा कि ब्रो मैंने PKR लिख दिया था SAR की जगह, ठीक है। और यार गलत, और वो क्लाइंट ने भी कहा हाँ ठीक है ब्रो, इसको कराते हैं सही स्लेवरी, ठीक है, और ये कर लेगा। और मैंने ओए उसके बाद होए उससे कहा होए ब्रो मैं नहीं काम कर सकता, ओए होए होए आप करें। तो उसके बाद मुझे समझ आया कि ब्रो किसी को ना बताओगे तुम क्या करने वाले हो। कर लो एक ये दफा, भी पैसे आ जाए फिर खरीद लो ये चीजें, मगर बहुत किसी को जरूरी पता है, मत। मतलब एज अ यंग मुझे भी बरस, अब तो खैर क्योंकि हम एक प्रोसेस में आ गए हैं, चीज़ें रवानगी में आ गई है, अब थोड़ा बता भी देते हाँ हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था, ये जो होते हैं, ये जो बाहर के होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स बताते हैं वी मेड $10,000 लास्ट मंथ, और हाँ ये और वो एजेंसी वाले, हमें तो नजर इतनी लग जाती है, कभी मैं कोई क्लाइंट आ भी जाए ना, तो वो ही भाग जाता है। मैं अभी बताया कभी एक मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा, कि मैं बड़े लोगों को बताया कि भाई तू टेंशन ना ले, आ गया $4,000 क्लाइंट आ गया, बेफिक्र है, ठीक है, इस महीने तो हाँ इंशाल्लाह अब बेहतर ही चलेगा काम, एक रिटेलर क्लाइंट आ गया है, कम से कम 5 मिनट हाँ चलेगा, हाँ तो हमारे पास अच्छा एक रनवे आ जाएगा, ये तो वो ऐसी नजर लगी। वो ना सिर्फ वो पहले हफ्ते में गायब, पहले हफ्ते में चला गया। तो ऐसा वैसा बड़ा होता है, मैं कहता हूँ यार अब हम हाँ क्या हाँ बताएं, तो कितना बताएं और कितना लाभ बताएं, ठीक है ना, अब तो यहाँ पे भी रिस्ट्रेंड है। लेकिन मैं मैजिक बहुत देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ना ऐसी ऐसी जगहों से पैसे आए थे आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, जो कि आपने लोगों को रखा होता है, साथ रिस्क रखा होता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों से पैसे आए थे, कुछ देर भी नहीं होता आपको, आपको होता है मिड ऑफ द वीक मंथ होता है आपको, यार मैं रिजर्व से निकालूं, क्या करूं मैं मतलब क्या करूं, हम्म, चलो देखते हैं, चलो यार हफ्ते बाद देखते हैं क्या बनता है। तो उसी हफ्ते में कोई हाँ ऐसा एक प्रोजेक्ट आ जाता है, या फिर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर, यू लाइक हाँ हाँ डैम, वाह यार क्या, तो ना वो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हाँ। नहीं आपको यार, जैसा। मुझे तो ये लगता है कि हाँ आप हाँ, वो जो वो वाली थी ना चीज़, कि आप अंडरस्टैंड करो कि आपके जितने भी पैसे आ रहे हैं आप 10% दे दो। आप ये तो पहले तो ये समझ लो, ये आपका पैसा नहीं है, अल्लाह ने आपको दिया है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप अल्लाह की राह में जब दोगे, जब वो डबल हो रहा है, इट्स लाइक इट्स गेटिंग 10x, दैट्स व्हाट्स प्रॉमिस्ड, ठीक है, इट्स यप प्रॉमिस्ड बाय यप गॉड। यप। तो आप जब उसमें जितना यकीन रखते हो, मुझे लगता है दैट्स व्हाई आई हैवंट बिन ब्रोक, अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं कोशिश ये करता हूँ, चाहे वो हर ट्रांजैक्शन हो किसी के साथ, क्या हमारी बिजनेस के भी फंड्स जो है ना जा रहे हो इस तरीके से, तो इट जस्ट हेल्प्स द बिजनेस, दैट्स व्हाई द बिजनेस सर्वाइव्स, आई फील लाइक। और फिर और भी चीज़ें जो आप समझते हो कि यार वंस यू हैव पीपल दैट यू हायर्ड, जिनके आप यू नो लाइवलीहुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी कंपनी कर रही है, सो यू हैव टू डू गुड नॉट फॉर योर सेल्फ बट योर फैमिली, एंड ऑल्सो योर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली ऑल्सो। ऐसा ही है, So it's ऐसा like ही a है। certain weird side of like pressure that you have. It's a good thing. But if you really take it like seriously, आपको जो है ना बड़ा इसके एक बहुत ही यूनिवर्स की तरफ से ना, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिलता है वापस, कि हाँ भाई ऐसा ही है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो मुझे तो इसी चीज़ में ही ज़्यादा यकीन और वो बिल्ड हुआ है कि यार, कि आई नीड टू चेंज माई परस्पेक्टिव टूवर्ड्स मनी, यू नो। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, मैं अगर इस तरीके से पैसे को देखूंगा कि वो पैसा ख़त्म होने वाला है, कि ये क्या वो क्या। मैं आपको बताया कि हमारे रिटेनर क्लाइंट्स तो अब आए हैं, बहुत टाइम से हमारे साल से रिटेनर क्लाइंट्स थे भी नहीं, एक था शायद। बट वी वुड हैव प्रोजेक्ट्स एवरी अदर मंथ। अब वो प्रोजेक्ट 3 महीने चल रहा है, 4 महीने चल रहा है। तो it just worked out, you know. And I like to have like more stress free thing, that's why I have like a lot of people on just project based, कि अच्छा प्रोजेक्ट आएगा आप भी कमाओगे। प्रोजेक्ट बेस में मेरे लिए नुकसान है, इट्स ईजियर टू हायर समवन फॉर फुल टाइम और उनसे दबा के आप काम कराओ, ठीक है। बट इन प्रोजेक्ट बेस में मैं उनको पर प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, बट आई फील लाइक कि क्या मैं छोटा छोटा पैसा करके कौन सा मिलियनियर बन जाऊँगा, ठीक है। इट्स बिगर लाइक इट्स बेटर टू हैव लाइक अ बिगर पिक्चर इन अंडरस्टैंडिंग मनी, रिलेशनशिप्स, एंड यू नो योर वर्क प्रैक्टिस बेसिकली। ऐसा ही है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रिस्क इज, बेशक आपका रिस्क जो है वो इट्स इट्स बहुत मुतय्यद है, वो मतलब इट्स मतलब पहले का लिखा हुआ है, बट आपके अकाउंट में जो रिस्क है वो सारा आपका थोड़ी है। हदीस है कि हाँ। जो जो आप खा लो, जो आप पहन लो, वही आपका रिस्क है, ठीक है। जो हम्म। मेरा XYZ प्लॉट है, जो जो मेरी XYZ स्टेटमेंट है बैंक की, वो जरूरी थोड़ी है मेरी है, क्या बताओ मेरे पे लगे ही ना, वो किसी और के पास जाती है, हम्म। मैं सिर्फ उसका एक मीन बना हुआ, एक जरिया बना हुआ हूँ, ठीक है, दैट्स हाँ व्हाट। और जितने ज़्यादा जरिए बनाते हो आप, उतना आपकी जो ना ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट में बरकत पड़ती है अल्लाह की तरफ से। हाँ। बेशक आपका लाइफस्टाइल और आपका खुद का इस्तेमाल कम ही रहे, लेकिन आपकी हम्म। स्टेटमेंट इम्प्रूव होती रहती है, क्योंकि आपने शाखें निकाली, आपने और लोगों को किया, और मतलब आपको जो है ना उनका रिस्क, आप एक वसीला बन जाते हो, बेसिकली आप एक मीन बन जाते हो, हाँ। आपने उनको देना होता है।
सो ये चीज़ मैंने रियलाइज किया, तो मैं भी बड़ा मैं कहा बेफिक्र है, अल्लाह ताला जो है ना सिर्फ तेरे तुझे नहीं पाल रहा, उनको ही पाल रहा है, हाँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो मैं भी वही बड़ा चाहता इतना बड़ा इंजॉय करता हूँ मैं, और मैं बड़ा कहता मिरेकल्स उसको इसमें से देखता हूँ, मैं सिर्फ बिकॉज आई एम समवन हु रियली इज डीप इनटू इस्लाम एंड फिलोसफी एज वेल, स्पिरिचुअल सॉरी साइकोलॉजी एज वेल। तो मैं उसको ना है। हर महीने एक मिरेकल देख रहा होता हूँ कि यार आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा जो मेरे से तो गुमान भी नहीं था ये मेरा क्लाइंट बन सकता है, वो मुझे रीच आउट कर हाँ, रहा है इन द मिडल ऑफ द मंथ, जब मेरे पास मेरा पुराना क्लाइंट चला गया है या फिर ख़त्म हो गया है, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हाँ, हैं, और वो मुझे एडवांस भी दे रहा है, ताकि जो है ना मेरी हाँ। जो ये जो सर्कल रुका था ये चलता रहे, है ना। वो लाइक क्या क्या खूबसूरत बात है, क्या मेरिकल है हम्म। ये, छोटे छोटे से मेरिकल्स और शायद लोग फील बहुत है कि बड़े। अगर आप उसको हाँ रियलिस्टिक रेल में ना देखो और उसको एक वो देखो ना कि दिस इज जस्ट अनदर पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ, हाँ और आप उसको, क्योंकि रियलिस्टिक लॉजिक तो यही है ना बिजनेस की यार, कम पैसे में आप ज़्यादा काम कराओ, आप बेनिफिट करो, आपको ये होगा। बट आई फील लाइक हाउ इफ़ यू लुक एट इट इन अ रिलीजियस परस्पेक्टिव, आप कहते हो यार ये तो पैसे को इस तरीके से देखना ही नहीं चाहिए, इट्स जस्ट मनी, इट्स जस्ट अ पेपर, वो आपको आ रहा है बैंक में, आपके ज़ीरोज़ हैं नहीं है, इट डजेंट मैटर। ऐसा तो ही है। वो चीज़ मैंने भी बड़े टाइम के साथ सीखी है, और अब मैं ऑब्वियसली इन्जॉय भी करता हूँ कि हाँ भाई ये होगा तो इससे ये कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होंगी, ये चीज़ बेहतर होगी, और लोग भी हायर हो सकते हैं, तो ये हो सकता है, देयर इज लाइक सो मच दैट यू कैन डू विथ मनी, दैट्स व्हाई आई लव टू मेक मोर मनी, बट डोंट लुक एट मनी एज लाइक कि कंजूस रह के बिजनेस नहीं करना, वो मुझे बड़ा हाँ हाँ ये बड़ी ज़रूरी गंदा बात लगता है, है यार मुझे। क्योंकि अल्लाह ताला हाँ, पसंद करता है स्पेंडिंग को भी, आपकी सवाए आप हराम में स्पेंड कर रहे हो, आपकी अक्सर स्पेंडिंग आपकी ज़ात में स्पेंडिंग, अपने दोस्त में स्पेंडिंग, भाई पे स्पेंडिंग, फैमिली पे स्पेंड, सारा सदका है, ठीक है। हाँ, आपकी एम्प्लॉय पे स्पेंडिंग सदका है, लोगों को खुद की स्पेंडिंग वैसे इस्लाम ने पसंद की है, देयर इज अ रीज़न, ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि इसी वजह से ऐसा है, लेकिन हाँ, वन हाँ। ऑफ रीज़न कैन बी कि शायद इंटरेस्ट भी इसीलिए हराम है क्योंकि सेविंग पसंद ही नहीं की गई। चाहते हैं सर्कल हम्म। होता रहे, बड़ी बड़ी सर्कल हो, हाथ से जाए, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होती रहे मनी के साथ, ताकि जो है ना उसमें बरकत पड़ती है, जितना स्पेंड करते हो उतना बरकत। पे और भी आता है अल्लाह की तरफ से। इट्स जस्ट हम्म। द वे ऑफ लाइफ एंड हाउ आई सी इट ऑनेस्टली। मैं इसलिए ज़्यादा मुझे भी जो है ना कंजूस का एलिमेंट नहीं है, पैसे बनाने हाँ, हैं, पैसे बनाने हैं ताकि और लगाए जाए, दैट्स द होल पॉइंट। हाँ। तो नहीं, नहीं, दैट। यार फन कॉन्वर्सेशन हुई है यार हमारी, काफ़ी अच्छा। आई थिंक हम लोग सीन में तो थे म्यूचुअली, लोगों को जानते हैं, ऐसे तुम भी जानते थे, हम्म। मैं भी जानता था, शायद हम लोगों ने देखा भी एक दूसरे का काम इधर उधर से, लेकिन आज अच्छा मौका मिला कि वी कनेक्टेड, और काफ़ी हमारी अच्छी गुफ्तगू हुई, यार, स्पेशली नहीं, नहीं, एंड आई पे एम जो है ना। ग्लैड यार। हाँ हाँ, स्पेशली जो एंड पे हमारी गुफ्तगू हुई है, इट्स रियली पावरफुल, और बड़ा मज़ा आता है ऐसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप यंग एंटरप्रेन्योर से और यंग लोगों से बात करते हो, थोड़ा सा एक ठीक है, वो सारी बातें सारे गुरुज और मंत्रास वाली बातें सारे कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, एक हाँ, ह्यूमन हाँ। लेवल पे एक हार्ट टू हार्ट जब होता है ना, तो उसका भी बड़ा मजा आता हम्म। है। एंड आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन टुडे, एंड नहीं, आई नहीं, आई एम होप हम ग्लैड यार। कनेक्टेड रहे अब इस इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, लाइकवाइज। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला खैर करे, आप रोग उनको फाड़ के ही आओगे। सो हाँ, या थैंक यू इंशाल्लाह। फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट, नहीं, नहीं, थैंक यू प्लेजर बिलाल फॉर हैविंग टॉकिंग यू, एंड मी। या, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार यू न्यू मी फ्रॉम अ पॉडकास्ट एज वेल, कि मैं कहा अच्छा यार या। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइडेड अफेयर है, हाँ, नहीं, नहीं। भाई भी मुझे जानता था। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं यार, आई थिंक यू बीन मेकिंग स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो इंटरनेट पे सरफेस होती रहती हैं रैंडमली, आपको पता भी नहीं होता कौन किस पे पहुंच रही है। ऐसा ही तो है दैट्स अ नाइस थिंग। या। बट नहीं, आई थिंक इट साउंड्स गुड, आई एम गोइंग बैक टू माई वर्क स्टेशन नाउ, या मंडे चल रहा है आज, तो बिल्कुल आई एम जस्ट गोना गो बैक ऐसा कनेक्ट ही है, विद माई मैंने भी टीम, देखा कि बट हमारा ओवरऑल। लगभग तैयार होने वाला है, और जो है हाँ, ना हाँ, अब आगे और भी मीटिंग्स वगैरह है, लेकिन एक अच्छा आर गुजरा, इट्स इट वाज अ फन हाँ, आर। नहीं, नहीं, it was- हाँ, तो थैंक यू वेरी मच thank- फॉर कमिंग, एंड होप टू सी यू सून इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कभी भाई, लाहौर आओ तो इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर, ज़रूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।